हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि आने वाले कुछ समय में अच्छे कर सकती है। और इसी बिज़नेस में एक स्टॉक को भी पिक करेंगे, उस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और उसका प्रेजेंटेशंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट अस गो थ्रू दिस न्यूज़ wherein Mr. Nitin Gadkari on Wednesday traveled to Parliament in a hydrogen-based fuel cell electric vehicle in what could be the interpreted as a strong indication of a shift in stance by the center that has so far backed conventional battery powered electric vehicles. So yes, there is a lot of importance being given to non-conventional source of energy and hydrogen fuel. It might be CNG, gas fuels, which have a very bigger impact and bigger reach in recent time. अगर हम और ज़्यादा ड्रिल डाउन करके ये न्यूज़ पे ज़्यादा गौर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया बैंक्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग जो कि थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, नीति आयोग रिपोर्ट सजेस्ट दैट इट कैन अबेट 3.6 gigaton of cumulative carbon dioxide emission by 2050, which may prove to be boon for the country if it succeeds in its endeavor. हमारी कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है नेट कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए, पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए, एंड उससे हम अपना एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशंस को एक अच्छे अर्थ छोड़ के जा सकते हैं। सो इफ यू कुड सी हियर, ग्रीन हाइड्रोजन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेट zero plan. Hydrogen will act as a critical enabler to achieve the global target to limit the increase in a temperature to 1.5 degrees Celsius, which is according to the Paris climate deal, and to adapt to adverse impacts of the climate change and foster low greenhouse gas emission. ये बहुत ही important हो जाती है। And if you could see here, number of sectors like iron ore and steel, fertilizers, refineries, methanol, heavy duty trucking, aviation, marine shipping emits large amount of carbon dioxide. तो इसको नलीफाई करने के लिए हमको दूसरे फ्यूल से रिप्लेस कर सकते हैं, वो करना चाहिए, एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए रिन्यूएबल सोर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो हम अगर नैरो डाउन करते हैं और हम अगर सिर्फ CNG और हाइड्रोजन फ्यूल को बारे में देखेंगे तो देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दीज फ्यूल्स। हम जनरेट करेंगे ये नहीं हेल्प होगा, हमको उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको एक हाई प्रेशर सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आज जिसमें कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ऐसे सिलेंडर्स को प्रिपेयर करती है। उसका इंडिया में 2 जगह पे प्लांट्स भी है, USA में भी है, एंड इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग। तो मैं डायरेक्टली उस कंपनी का प्रेजेंटेशन खोल चुका हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द कंपनीज नेम इज एवरेस्ट केंटो सिलेंडर लिमिटेड, एंड दिस इज द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फ्रॉम अगस्त 2020। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड 4 decades ago। तो बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है उसको इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग दीज सिलेंडर्स, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978। And it has also expanded to the Middle East and Dubai region also. Products which this company produces is nothing but CNG steel cylinders, which is currently focusing on, and with increase in the hydrogen based cylinders or CNG based cylinders and reduction in number of the petrol and diesel vehicles, so there will be a lot of scope for this. Even the industrial cylinders, wherein the wide range of industrial cylinders are desired for industrial gases, medical and food beverage applications, and that is one of the thing. And even medical oxygen during the time of COVID, that was the largest priority which we had to provide oxygen, and in order to transport this oxygen we needed a cylinders, and it finds a very important use. Cylinder for hydrogen gases I've already mentioned, and there are like different product variants which it has. Even the jumbo cylinders capacity, they are being produced by this Everest Kento cylinders, और इसका क्वालिटी सर्टिफाइड है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और इंडिया में करंटली ये तारापुर महाराष्ट्र और कांडला गुजरात में इसके प्लांट्स हैं। एनुअल कैपेसिटी इन द तारापुर महाराष्ट्र प्लांट एंड 8 लाख द गुजरात प्लांट, और ओवरसीज भी है उनके प्लांट जो कि दुबई में है, USA में भी है, एंड इवन देर इज कैपेसिटी एक्सपेंशन भी होने वाली। तारापुर में उनका रेवेन्यू पोटेंशियल 300 करोड़ की होने वाली है, और फेज 1 कंप्लीटेड है। उसी तरीके से हंगेरी में भी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन बना रहे हैं जो कि FY24 में स्टार्ट होने की चांसेस है।
तो दीज आर द थिंग्स। और इंटरनेशनली भी एक्सपांड कर रहे हैं, यूएसए में भी हो रहा है, यूरोप में, यूएई में, बहुत सारे प्लेसेस में ये एक्सपांड कर रहे हैं। और अगर हम इन स्पेसिफिक इनका बिजनेस देखेंगे तो इनका बिजनेस बढ़ने की चांसेस क्या है। सो इफ यू कुड सी द गैस कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज प्राइमरी एनर्जी मिक्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 11% इन 2010 टू 20% इन 2030। सो सिर्फ 10% ही ग्रोथ हुई है, एंड बाई 2020 इट इज गोइंग टू बी 20%, एंड बी इट इज इन द इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट। और जैसे जैसे हम गैस इकोनॉमी की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा यूसेज बढ़ता जाएगा, गैस इकोनॉमी का यूसेज, तो वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि ईकेसी कंपनी अच्छी करने की चांसेस है। नीड ऑफ ईकेसी, देयर इज वन इज इंडिया इज कमिटेड टू अचीव 50% शेयर ऑफ नेचुरल गैस प्राइमरी मिक्स बाय 2030, एंड दीज आर सम ऑफ द न्यूज़ व्हिच वी कुड सी इन दिस कंपनी। जैसे कि मैंने बोला था, हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, and hydrogen fuel could be a very important fuel in few years. So hydrogen is going to take over the conventional source of energy. तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं hydrogen demand in India is expected to increase 5-fold by 2050, and if that happens EKC would also be benefited. इसके बहुत सारी इंडस्ट्रियल डिमांड्स भी है, जैसे कि फायर इक्विपमेंट्स हम जानते हैं, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट हम जानते हैं, इवन एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो आजकल बहुत सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो उसके लिए भी वन ऑफ द सोर्स हो सकती है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब थोड़ी चीज़ें हैं जो कि मैं इस कंपनी के बारे में बताना चाहता था। एंड नाउ लेट अस क्विकली गो टू द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। इफ यू कुड सी, आई हैव ओपन द स्किनेरा 1300 करोड़ की कंपनी है, जो कि माइक्रो कैप में ही आती है, और स्टॉक पी सिर्फ 5.43 है, एंड दिस इज व्हाट आई एम वेरी इंप्रेस्ड विथ। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 40% एंड 34% रेस्पेक्टिवली, एंड इट इज ट्रेडिंग एट वेरी क्लोज टू द बुक वैल्यू, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस टू डेब्ट टू इक्विटी इज 0.14 एंड प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.08। तो ये कंपनी बहुत ही सॉलिड लगती है मुझे इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज। अगर हम इसी का पी देखेंगे ओवर 5 years रेंज, तो इट इज़ 9.3, एंड इवन इन इट्स रेंज इटसेल्फ ये ऑलमोस्ट हाफ वैल्यूएशन में मिल रही है, एंड दैट मेक्स दिस कंपनी इंटरेस्टिंग। और अगर हम इंडस्ट्रियल पी को भी देखेंगे तो 12.66 है, एंड दिस इज 5.45 विच इज़ वेरी वेरी लेस आई फील। एंड अगर हम आगे जाके देखेंगे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को, तो द रिजल्ट्स हैव बीन इम्प्रूविंग कंसिस्टेंटली, लेकिन इस क्वार्टर में जैसे कि सारे इंडस्ट्रीज में वही प्रॉब्लम चल रहा था कि इन्फ्लेशन रिलेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा मार पड़ी थी, एंड प्रॉफिट ऑल्सो वॉज रिड्यूस्ड। तो अगर लास्ट क्वार्टर इसी टाइम में देखेंगे तो 69 करोड़ में था, तो इस बार 39 करोड़ में है, एंड दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव फैक्टर विच आई फील। और अगर हम सेल्स भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ी है, एंड दैट इज वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। एंड इवन if I have to understand about the investment and capital work in progress, as I have already told, there are a couple of greenfield projects and also brownfield projects which are planned, and it is currently in progress. तो उससे हमको सेल्स में इंक्रीज होने के चांसेस है, और उसी के हिसाब से प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। And if I could see the shareholder pattern, so promoter holding has been consistently at around 67.39%, whereas FIIs भी थोड़ा करके उन्होंने अपना holdings increase किया है, and DII has reduced a bit but very small percentage. So ये एक important चीज़ हो जाती है। अगर हम इसके 6 months की टेक्निकल चार्ट भी खोलेंगे तो दिस कंपनी इज अंडर अ लॉट ऑफ pressure after the results. It has fallen down drastically, and currently it is at around 116 and 110 to 116 level. इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो आई थिंक प्रोबेबली वी कैन वेट फॉर इट टू कंसोलिडेट एंड शो सम राइज, एंड वंस इट गिव्स दैट राइज इट बिकम्स अ वेरी गुड कंपनी टू गो अहेड एंड इन्वेस्टमेंट। एंड जस्ट प्लीज नोट, दिस इज माय ओपिनियन अबाउट दिस कंपनी, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, उनका इनपुट्स ले सकते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ बाइंग ऑन सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ वीडियो फॉर
information purpose only. If you do like this video, please do like, share and subscribe, and thank you for watching this video. Thank you very much. आगे मिलते हैं अगले वीडियो में.